Hello students, welcome. For the past few online lectures, children, we have discussed with the prose section, the poetry section, chapters or चार poems हम लोगों ने complete किए हुए हैं. Along with that, we also discussed with the figures of speech. Okay. Now, in connection to all these children, one of the most important topics that we need to cover is related to grammar. So, henceforth, after every chapter or every poem, we would be covering some important grammar topics so that we are well prepared for our board exams. And grammar, children, as far as concerned, it's not only the board exams, it's going to be for your lifetime. So, and as I have told you earlier, children, 12th standard is the last year where you get to study something related to English, grammar, writing skills. Once you finish with your 12th standard, then you don't have much of English to be studied, but everything falls in English. Okay. So for today's lecture, children, we are going to just have an overview of all the grammar topics that we are going to cover over the coming lectures. Okay. So I will be teaching you very clearly or in a very simple ways how to master the grammar in English. आपको इंग्लिश आता है नहीं आता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन ग्रामर तो आपको आना ही है, मतलब ठीक है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर आउट वन थिंग कि जो बहुत सालों से हमारे मन में एक डर पैदा किया गया है ग्रामर का, उसको पहले निकाल के बाहर फेंकना है. अच्छा, ग्रामर मुझे नहीं आता है, ऐसा अगर आप पहले से ही सोचोगे तो आपको ग्रामर नहीं आएगा. तो why don't you keep yourself open in the sense कि like say yes I will learn grammar, आएगा मुझे, क्यों नहीं आएगा. अच्छा, and there is something like law of attraction. when you attract things, हाँ मुझे ग्रामर आता है, तो शायद आपका एक मेंटालिटी तैयार हो जाएगा और आपको ग्रामर अच्छे से आना चालू हो जाएगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल योरसेल्फ yes I am going to learn grammar and I can do it. That's it. Clear? अच्छा, now as far as grammar is concerned, children, we almost have studied the basic grammar up to 7th standard, 8th standard. 8th standard के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा advanced grammar सीखा हुआ है. अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों का कैसे कि like there are many people who have studied from English medium, there are many people who have studied from vernacular mediums, but here for the 12th standard children we are going to cover a grammar which will be taught for all the children together. So it's like whether English medium, whether vernacular medium, we are going to have some common grammar here, children. So vernacular medium से पढ़े हुए बच्चे लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है. एट द सेम टाइम इंग्लिश मीडियम से जो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उन लोगों को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि मुझे आता है करके, ठीक है. कीप योर सेल्फ ओपन दैट आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग. सो व्हाट आर द बेसिक टॉपिक्स दैट वी हैव, चिल्ड्रन? नथिंग न्यू. मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा टॉपिक आएगा जो आपने अब तक सुना नहीं है. That means most of the topics we have either studied or at least heard that they exist in grammar, children. So we are going to take a look at what are the topics and just give you might be a hint of what these grammar topics would be like. So as you can see on your screen, children, the first topic that will be covering up here is related to the parts of speech. ये मुझे लगता है आपने 3rd 4th स्टैंडर्ड में पढ़ना चालू कर दिया रहेगा, right? We were taught that there were 8 different parts of speech: noun, pronoun, adjective, then we have a verb, then we got prepositions, conjunctions, interjection. Okay, now out of all these parts of speech, children, आप बोलेंगे सर 12th में भी आएगा. हाँ, आ सकता है, बट दे माइट आस्क यू इन अ डिफरेंट पैटर्न. जैसे कि आपको एक आध वर्ड दिया है और आपको बोलेंगे कि लाइक उसका वर्ब फॉर्म बनाओ. अच्छा, वर्ब दिया है, बोलेंगे कि नाउन फॉर्म बनाओ. अच्छा, एक आध सेंटेंस दिया है, चलो अंडरलाइन करके दिया रहेगा, बोलेंगे कि रीराइट द अबव सेंटेंस यूजिंग द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम वन पार्ट इनटू अनदर पार्ट, एक कन्वर्जन करने के लिए आपको आएगा, ठीक है. बट मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा हुआ है बच्चे लोग, इधर इंग्लिश में या फिर शब्दांशा जाति, ऐसा कुछ आप मराठी में वगैरह सुनते थे, बट दे आर टिपिकली सेम विद इट्स इंग्लिश और Marathi or Hindi. So we'll be covering up that all the 8 different parts of speech, children. I'll be teaching you 1 or 2 lectures you might require for that. The second on your screen, children, what have they mentioned? Types of sentences.
बच्चों सेंटेंसेस जो होते हैं वो कुछ मीनिंग कन्वे करने के हिसाब से 4 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं. सो एज यू नो चिल्ड्रन, वी हैव गॉट अ assertive sentence, then we have got interrogative sentence, imperative sentence, and then we have got a exclamatory sentence. अभी आपको ये भी पता रहेगा कि assertive के अंदर और 2 टाइप्स होते हैं. कौन से? affirmative और negative. तो यहाँ पे बच्चे लोग एक तो टाइप्स में आप बोलोगे सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपको एक टाइप का सेंटेंस दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अनदर टाइप. सो कैन वी कॉल इट लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस? यस. जैसे कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है क्या कि मॉडर्न हिंदी फिल्म सॉन्ग्स डू नॉट हैव मच म्यूजिकल वैल्यू. ये नेगेटिव सेंटेंस है बच्चे लोग, और आपको बोला गया कि अफर्मेटिव बनाओ. सो आप ऐसे लिख सकते हो मॉडर्न हिंदी फिल्म सॉन्ग्स हार्डली हैव मच म्यूजिकल वैल्यू. या फिर आपको ऐसे लिखा जाएगा कि पीपल वर डाउटफुल वेदर नरेंद्र मोदी वुड कम. आपको बोलेंगे कि नेगेटिव बनाओ. सो पीपल वर नॉट श्योर वेदर नरेंद्र मोदी वुड कम. तो ऐसे कुछ कन्वर्जन्स आते हैं बच्चे लोग. हो सकता है कि आपको एक आध स्ट्रेट सेंटेंस दिया हुआ है क्या कश्मीर इज इंटेंसली कोल्ड इन विंटर. आपको बोलेंगे एक्सक्लेमेटिव बनाओ हाउ कोल्ड कश्मीर, लाइक हाउ कोल्ड इज कश्मीर इन विंटर. ऐसे कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बच्चे लोग, देन वी विल हैव टू कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट टाइप्स. द थर्ड टॉपिक चिल्ड्रन दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इज अगेन रिलेटेड टू टेंसेस. टेंसेस चिल्ड्रन, एक कंपैरेटिव चार्ट अगर आप बनाओगे तो आप उसके सहारे कोई भी टेंसेस को मास्टर कर सकते हो. बट व्हाट वी विल बी लर्निंग चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू एग्जाम ओरिएंटेड ग्रामर. ग्रामर बच्चे लोग बहुत ज्यादा वास्ट होता है, सो हम लोग उसको थोड़ा एग्जाम के लिए लिमिटेड रखते हैं. सो टेंसेस में बच्चे लोग द प्रेजेंट, द पास्ट, द फ्यूचर, उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट, इफ यू टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हर एक का जो फॉर्मूला आता है बच्चे लोग मैं आपको बाहर करा के दूंगा एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर सकते हैं. अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो इधर दे माइट आस्क यू टू आइडेंटिफाई द टेंस. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ दे टेल यू समथिंग लाइक दिस, मुंबई वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बाय द रेन. आपको बोलेंगे लाइक आइडेंटिफाई, तो अगर हम लोग बोलते कि लाइक सिंपल पास्ट करके. अच्छा, अगर आपको बोलेंगे कि लाइक उसको कन्वर्ट करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हो बच्चे लोग, हाँ मुंबई हैड बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द रेन. Okay, so suppose for example कि here we'll have to transform from one tense into another tense. Children, after the tenses, the next topic that we have is articles. ये हमने बहुत लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ा है बच्चे लोग, लेकिन आज तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि होता क्या है. अभी हमको पता है कि 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द. अब ये 3 आर्टिकल्स को कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है, सब रूल्स मैं आपको सिखाऊंगा. डेफिनेट आर्टिकल होता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन. द इज यूज्ड बिफोर, द इज नॉट यूज्ड. ओके, ए और एन कहां पे यूज करने का, उसमें भी ए कहां पे, एन कहां पे. सो सपोज फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, हियर विल बी लर्निंग अबाउट ऑल दोज रूल्स, और इंग्लिश बात करते वक्त शायद आप ये प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो. द नेक्स्ट टॉपिक इन लाइन चिल्ड्रन वी हैव इज रिलेटेड टू द prepositions. Preposition children, it was actually covered in parts of speech. Prepositions are basically those words which actually show the relationship between two nouns or pronouns. जैसे कि I am teaching in the class और mother is cooking in the kitchen. तो वहां पे किचन वर्ड है, उससे पहले कौन सा वर्ड है, इन, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, preposition. So any word which comes before a noun or a pronoun and it explains its relationship with some other noun or pronoun. जैसे कि मैं बोलता हूँ I am writing on the board, तो on is actually called as a preposition. तो उसके भी types रहेंगे बच्चों लोग, preposition of time, preposition of place, direction, agency, reason, purpose. Okay, all those things will be covered up. अब बोले सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, fill in the gaps देंगे. The meeting will be held dash Monday, आप क्या लिखोगे, on Monday. Dash 10:30 AM, तो आप क्या लिखोगे, at 10:30 AM. Dash two parties, आप लिखोगे between two parties. Dash the hall, in the hall. Okay, so ऐसे fill in the blanks आते हैं. Then children, the next topic, that's change the voice. Change the voice children, that's like दो voices होते हैं, active voice और passive voice.
अच्छा, अभी एक्टिव पैसिव में जनरली दे आस्क यू डायरेक्टली, बच्चों यू माइट बी गिवन वन सेंटेंसेस और यू माइट बी गिवन वन सेंटेंस, जैसे द रेन डिवाइडेड मुंबई इनटू 2 पार्ट्स, तो ये कौन सा एक्टिव वॉइस है, तो आप क्या लिखोगे, मुंबई वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द रेन, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। कभी कभी ऐसे भी होता है बच्चों कि लाइक यू माइट बी गिवन वन सेंटेंस, क्या कि सैम वॉज जॉइंड बाय हिज फ्रेंड्स, और आपको बोलेंगे हिज फ्रेंड्स, रीराइट द अबव सेंटेंस बिगिनिंग विथ हिज फ्रेंड्स वर जॉइंड बाय सैम। So almost like children, that's how we'll be changing the voice. Again, tenses के हिसाब से कुछ अलग अलग rules सीखेंगे हम लोग उसमें. Then children, after that we have got the chapter number 7, जो आज तक बहुत सारे लोगों को ज़्यादातर difficult जाता है. It's related to reported speech. चलो, reported speech is also known as direct and indirect speech. So आपको एक sentence दिया हुआ है, क्या? He said, comma, inverted comma में लिखा है, My father is writing notes for me, और आपको ब्रैकेट्स में दिया है रिपोर्टेड स्पीच में लिखो, इनडायरेक्ट स्पीच में तो आप लिखो ही सेड दैट हिज फादर वाज राइटिंग नोट्स फॉर हिम, तो यू टॉक एज इफ यू आर नरेटिंग इट टू अ थर्ड पार्टी। तो बच्चों असर्टिव, इंपरेटिव, देन वी गॉट इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटिव, चारों के लिए अलग अलग रूल सिखाऊंगा मैं आपको, रिपोर्टेड स्पीच कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 8 चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब जैसे थोड़ी देर पहले आपने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यस, दोज वर असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपरेटिव। यहाँ पे बच्चों अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ज्यादातर लोगों को ये टॉपिक डिफिकल्ट जाता है। टॉपिक के अंदर 3 सब टॉपिक से बच्चों लोग, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जैसे बच्चों लोग जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसको या तो आप सिंपल बोल सकते हो, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स, तो आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है बच्चों लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मोहन कंप्लीटेड हिज वर्क एंड वेंट फॉर अ मूवी, एंड लिखा मतलब एक कंपाउंड सेंटेंस है। अच्छा, आपको बोला कि कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन मोहन कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट फॉर अ मूवी, या फिर एज सून एज मोहन कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट फॉर अ मूवी। ये कौन सा बन गया, कॉम्प्लेक्स। एकदम सिंपल चिल्ड्रन, एक्चुअल ग्रामर वुड बी वेरी सिंपल देन यू एक्चुअली इमेजिन इट टू बी। ओके, चैप्टर नंबर 9 चिल्ड्रन, द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कितने डिग्रीज होते हैं बच्चों लोग, 3। सिंपल, कौन से 3 डिग्रीज होते हैं बच्चों लोग, सी सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू आर कंपेयरिंग द डिग्रीज, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये 3 अलग अलग डिग्रीज आते हैं बच्चों लोग, ठीक है। इफ आई से फॉर एग्जांपल, सीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव। सीता इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव। अच्छा, और सपोज फॉर एग्जांपल लाइक सीता इज टॉल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू चेंज फ्रॉम 1 डिग्री इनटू अनदर डिग्री। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस, और आपको बोले चेंज द डिग्री, आप लिख सकते हो ऐसे, नो अदर पीक ऑफ द हिमालयस इज एज हाई एज एवरेस्ट। ओके, कपिल वाज द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर, नो अदर इंडियन बॉलर वाज एज फास्ट एज कपिल। So that's the degrees of comparison. Children, chapter number 10 is modal auxiliaries. Modal auxiliaries बच्चों लोग are some kind of helping verbs which do the work of denoting some meaning. जैसे कि आपको अगर बताना है कि आप स्टडी करो, किसी को एडवाइस देना चाहते हो, हम लोग क्या बोलते हैं, यू शुड स्टडी रेगुलरली। तो शुड वर्ड इज यूज फॉर डिनोटिंग एडवाइस। हाँ, लेकिन मैंने से यू मस्ट स्टडी रेगुलरली, देन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज अ कंपल्शन, इट्स एन ऑब्लिगेशन। अच्छा, when I say it will rain today, I'm telling you that there is a certainty it's going to rain. It may rain today, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, possibility। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे जहां पे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर एक चैप्टर बच्चों लोग क्लॉजेस, जहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉजेस, ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे गेस करना है, उसके अंदर भी कौन से टाइप्स होते हैं बच्चों लोग, ऑल दैट विल बी कवरिंग इनटू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, अच्छा, चैप्टर नंबर 12 चिल्ड्रन, इट्स रिलेटेड टू नॉट ओनली बट ऑल्सो। अच्छा, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक्स दैट वी हैव चिल्ड्रन। अच्छा, सपोज फॉर एग्जांपल कि लाइक ही स्टडीज फ्रेंच, ही स्टडीज जर्मन, ही नॉट ओनली स्टडीज फ्रेंच बट ऑल्सो जर्मन। हाँ, तो इसको कनेक्ट करना है, ये तो सिंपल टॉपिक आएगा। चैप्टर नंबर 13 है बच्चों लोग, इफ और अनलेस। अच्छा, इफ यूज किया हुआ है तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हो, अनलेस। अनलेस यूज किया रहेगा तो इफ।
अच्छा, इफ आई लाइक यू आई शैल गिव यू अ रेड रोज। अच्छा, आपको बोले कि लाइक एग्जाम्पल कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग अनलेस के साथ। अच्छा, या फिर एग्जाम्पल अनलेस यू बिहेव योर सेल्फ यू वोंट पास। ओके, इफ यू डोंट बिहेव योर सेल्फ यू विल नॉट पास। ओके, सो आई थिंक ये रिप्लेसमेंट्स आते हैं यहाँ पे, विल बी लर्निंग दैट टॉपिक। 14th वाला टॉपिक है बच्चों लोग यहाँ पे, एज सुन एज, नो सुनर देन। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर केम टू द क्लास, फुल स्टॉप्स, टीचर स्टार्टेड टीचिंग। सो एज सुन एज टीचर केम टू द क्लास शी स्टार्टेड टीचिंग। फिर नो सुनर देन भी आता है। अच्छा, एज सुन एज दे हर्ड अ नॉइज द थ्री बॉयज स्टूड मोशनलेस। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नो सुनर डिड दे हियर अ नॉइज देन द थ्री बॉयज स्टूड मोशनलेस। ओके, तो इसके भी रूल्स आते हैं बच्चों, आपको जितना लगता है उतना भी आसान नहीं होता है, हाँ, लेकिन स्टडी करने के बाद यू विल गेट इट। फिर आता है बच्चों इधर और, निदर नॉट। तो ये भी सेंटेंसेस में, जैसे कि एग्जाम्पल इधर और से कनेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते तो वहां पे हम लोग निदर नॉर से भी कनेक्ट करते हैं। 16th चैप्टर चिल्ड्रन, हार्डली व्हेन। ओके, इसको भी सेंटेंस दिया जाएगा और आपको ब्रैकेट्स में बोलेंगे लाइक रीराइट द अबव सेंटेंस यूजिंग हार्डली और यूजिंग व्हेन। और भी कुछ छोटे मोटे वर्ड्स आते हैं यूज करने के लिए जो बेसिकली कंजंक्शंस होते हैं। रीराइट द अबव सेंटेंस यूजिंग दो, ऑल्दो, हु, व्हिच, बिकॉज, यूज्ड टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई फादर यूज्ड टू गेट ट्रांसफर्ड एवरी ईयर, या फिर माई फादर वुड गेट ट्रांसफर्ड एवरी ईयर। ओके, आई कैन स्टडी, सो आई एम एबल टू स्टडी, सो बी एबल टू। ऐसे कुछ छोटे वर्ड्स आते हैं जो सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। फिर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। पिछले आपने यू हैव हर्ड अबाउट समथिंग सॉर्ट कॉल्ड जेरंड्स, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स। ओके, तो हियर विल बी स्टडीइंग अबाउट द टॉपिक। फिर आता है यूज टू, रिमूव टू। माई फादर इज टू वीक टू वॉक, हटाओ टू। माई फादर इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अच्छा, सिंपल एग्जाम्पल, he is too poor to buy books for his son. He is so poor that he cannot buy books for his son. She will be too late to attend the first lecture. She will be so late that she won't attend the first lecture. तो to use भी कर सकते हैं, to हटा भी सकते हैं। Children, chapter number 20, it's related to question tags. क्वेश्चन टैग्स बच्चों हमने बहुत लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है, सो अब तक आपको ज्यादातर पता है। क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक मोहन वॉज वॉशिंग हिज कार, तो क्वेश्चन टैग क्या आता है, वॉजंट ही। ओके, मोहन वॉज नॉट वॉशिंग हिज कार, तो आप क्या लिखोगे, वॉज ही। सो पॉजिटिव नेगेटिव के रूल्स यूज किए जाते हैं। और बच्चों लोग क्वेश्चन टैग के सहारे एक क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे और सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स द लास्ट चैप्टर दैट वी हैव, इट्स नोन एज रेटोरिकल क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, रेटोरिकल क्वेश्चंस विल बी बेसिकली, जनरली इंग्लिश में आपको पता है, एक होता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में बच्चों लोग आपको जब पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या करते हो, माय नेम इज मेनिन, सो यू प्रोवाइडेड सम इंफॉर्मेशन एज इट्स आंसर। अच्छा, तो उसको WH क्वेश्चन बोलते हैं। इफ आई आस्क यू समथिंग लाइक नाउ, इज योर नेम मेनिन, तो आपके पास दो ही आंसर्स है, कौन से, इधर एस और नो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, इजंट योर नेम मेनिन, ये तो पूछने से ज्यादा बच्चों हम लोग बता रहे कि आपका नाम मेनिन ही है ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग रेटोरिक बोलते हैं। रेटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है बच्चों जिसका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही होता है। ओके, अगर मैं बोलता हूँ द पुअर चैप वॉज ऑलवेज क्राइंग, तो इसका रेटोरिक क्या बोलते हैं, वॉजंट द पुअर चैप ऑलवेज क्राइंग। इंडिया नीड्स टू स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, सिंपल एग्जांपल, डजंट इंडिया नीड टू स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। ये क्या बनते हैं बच्चों लोग, रेटोरिकल क्वेश्चंस। ओके, सो आई थिंक इफ यू नो ऑल दिस टॉपिक्स, तो आप एक तो एग्जाम में मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे बच्चों लोग, बट एट द सेम टाइम आप जब इंग्लिश में बातें करोगे या फिर व्हेन यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश एंड ऑल, तो आपका इंग्लिश बहुत आसान हो सकता है बच्चों लोग। लेकिन ग्रामर है तो आपने सिर्फ देखा और आप सीख गए, ऐसे तो होगा नहीं। जब आप पेंसिल लेके बैठोगे, खुद ट्राई करने का, आता नहीं है ऐसा बोल के अगर आप उसको सरेंडर कर दोगे तो नहीं आएगा। ट्राई करोगे, एक आध दो बार गलत होगा, बट एट द फाइनल टाइम यू आर गोइंग टू मास्टर इट आउट चिल्ड्रन। क्लियर? सो today's lecture I just give you a hint or an overview of what grammar we are going to study in the coming lectures. Okay, so next time when we meet we'll be covering one chapter from grammar. Okay,
and then we'll be going back to our prose and poetry section. Clear? Yes. That's all for today, children. Take care. Stay safe. Bye everyone. See you in the next lecture.